मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हम सिविक्स का लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। In the previous chapter we saw how women work in the home is not recognized as work. We also read how doing a household work and taking care of family members is a full-time job and there is no specific hours. We also learn about how women struggle for equality. Getting an education was and still is one way in which we know opportunities were catered for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women movement to challenge discrimination in more recent years. तो बेटा इसमें ये बताया गया है कि औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने दुनिया कैसे बदली। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक जरूरी समझे जाते हैं। और साथ में हम इस अध्याय में हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव की चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, मतलब कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। A lot of the children, Rosie, ma'am's class drew women as nurses and women and army officers. The reason that they did this is because they feel that outside the home, two women are good at only certain job. For example, many people believe that people make better nurses because they are more patient, gentle. This is linked to women roles within the family. Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. Most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. It is important to understand that we live in a society in which all children fall pressure from the world around them. Sometimes these come in the form of demands from adults. Boys are pressurized to think about getting a job that pay a good salary. They are also teased and willed if they do not behave like other boys. You may remember that in your class 6 you have read about how boys at an early age are encouraged not to try in front of others. कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। इसमें ये बताया कि रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं की ओर पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धाराओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलती है। ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरी लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और दोष दी जाती हैं। तो ये आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग फॉर चेंज। तो इसमें क्या बताया गया लर्निंग फॉर चेंज में कि Today it is difficult for us to imagine that school and learning could see as out of bounds are not appropriate for some children. Most children learn the work their families already did. For girls, the situation was worse in communities that taught sons to read and write. Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. In the 9th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common in communities that had never learned reading and writing, started sending their children to school, but there was a lot of opposition to educating girls. Even then, many women and men made efforts to open schools for girls. Women struggled to learn read and write.
तो इसमें ये बताया गया है कि आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात मानी जा सकती है, परंतु अतीत में पढ़ना और लिखना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाज में यहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, वहीं लड़कियों को अक्षर सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें वस्त्र बुनना, हस्तकला सिखाई जाती थी। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई विचारों ने जन्म लिया। वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।